बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मुझे शुक्रिया अदा करना है कि आज आप सब लोगों ने हमारी छठी माहाना कम्युनिटी मीटिंग के लिए वक्त निकाला है। इससे पहले हम 27 जनवरी, 24 फरवरी, 24 मार्च, 26 मई और 30 जून को भी माहाना कम्युनिटी मीटिंग्स का इनेकाद कर चुके हैं। हम इन मीटिंग्स का मकसद कम्युनिटी के साथ हाई कमीशन और कॉन्सुलेट्स के इंटरेक्शन को प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड के साथ ज्यादा मौसर और फाल बनाना है। हम आपके तहे दिल से मशकूर हैं कि आज आपने इस मीटिंग के लिए वर्किंग आवर्स में ऑन वर्किंग डे वक्त निकाला है। मैं हाई कमीशन ऑफ पाकिस्तान आटवा और टोरंटो, वैनकूवर और मॉन्ट्रियल कॉन्सुलेट्स की तरफ से तमाम मोअज़्ज़ज़ कम्युनिटी मेंबर्स को खुश आमदीद कहता हूं। आज हम कनाडा में मौजूद पाकिस्तानी सफारत खाने और कॉन्सुलेट्स की मुहैया करदा सर्विसेज पर बात करेंगे। आज इस मीटिंग में हमारे साथ निहायत ही मोअज़्ज़ज़ कम्युनिटी मेंबर्स GTA से, वैनकूवर से, आटवा से और मॉन्ट्रियल से मौजूद हैं। इनके अलावा हमारे एक्टिंग हाई कमिश्नर शहबाज मलिक साहब मौजूद हैं। एक्टिंग हाई कमिश्नर साहब के साथ साथ हमारे कौंसल जनरल वैनकूवर जनाब जांबाज खान साहब और कौंसल जनरल मॉन्ट्रियल इश्तियाक आकिल साहब तशरीफ रखते हैं। सबसे पहले मैं एक्टिंग हाई कमिश्नर शहबाज मलिक साहब को इजहार ख्याल की दावत दूंगा। मैं उनसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आटवा रिलेटेड सवालों के जवाब भी इसी इंटरवेंशन में दे दें। ओवर टू शहबाज मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व हज़रात, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। In the name of Allah, the most beneficent, most merciful. On behalf of the High Commission in Ottawa and our Consulates General in Toronto, Montreal and Vancouver, I welcome all participants. जैसे हमारे CG साहब भुट्टा साहब ने बताया कि this is an ongoing exercise, monthly basis पे हम इसको होल्ड करते हैं. So we welcome questions which are related to consular matters with the aim that we can further improve our services. So this exercise is taken very seriously by all of us, as you are all aware. जो मुझे सवाल आया है जी वो एहसन अली साहिबजादा साहब की तरफ से आया है, and I will read out the question. Has the High Commissioner had any discussion with the Canadian government regarding the possibility of allowing Pakistani citizens to travel to Canada on an electronic travel authorization, ETA? If not, has this been given any thought? I would like to highlight that ETA it's an entry requirement for visa-exempt foreign nationals traveling to Canada by air. So in this regard, I would just like to inform that Pakistan and Canada has no such agreement. So we do not have any such kind of arrangement with Canada. There was only one question on which needed to be answered by PAC Ottawa. So thank you very much, and over to you, sir. Thank you very much. Now we go directly to question and answers. I welcome Mr. Ahsan Ali Sahabzada, Abdul Wahid Saab, Jam Munir Saab, और मोहम्मद अहमद साहब, महमूद उल हक साहब। कुछ इनके अलावा ऐसे हजरात हैं जिन्होंने हमें सवालात भेजे हैं, लेकिन इस मीटिंग में शायद वो ज्वाइन नहीं कर सके। मोहम्मद अहमद साहब पाकिस्तान में गए हुए थे, पता नहीं वापस आ गए हैं, पाकिस्तान से ज्वाइन कर रहे हैं ये यहाँ से। लेकिन ये सुहेल मजीद साहब जो हैं, इनका भी हमें पाकिस्तान से सवाल आया है और क्वेश्चन पहले मैं पढ़ूंगा। Assalamu alaikum, sir. My son is establishing his dental surgical instruments business, namely OZ Brothers. Is it possible and convenient for you to provide us list of dental and surgical instruments, importers, dental and medical colleges and doctors? He will contact them to enter and establish his business in Canadian market. Our response is that the Consulate General maintains and updates the contact list of Canadian importers of different products, which are regularly shared with Pakistani exporters. The list of importers of dental surgical instruments has been shared on the email address provided by Mr. Suhail Majid. So ये बड़ा quick action हो गया कि मीटिंग से पहले ही इनका जो action था वो हमने कर दिया। The Consulate General can be contacted for any other query as well. Further details about these educational institutions can also be accessed
from the website of Royal College of Physicians and Surgeons of Canada, and I will read its address, www.royalcollege.ca. In case of any further query, Consulate General can be contacted through email. सुहेल मजीद साहब ने ही पाकिस्तान से दूसरा सवाल पूछा है, बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है, हमसे कई दफा ये पूछा जाता है. We often in Pakistan see on YouTube or Facebook regarding the vacant jobs in various sectors of Canada, staff required for Canada, recruitment in Canada, and we are asked to apply online. My question is it true and how much reality is there in these posts? Can we from Pakistan apply online for this type of jobs in Canada, or such jobs or news are entirely fake and we should not follow them? If there are some genuine organizations in Canada who are actually in need of manpower from Pakistan, please list them for our guidance. हमारा इस पे रिस्पॉन्स ये है, और ये हमने काफी लीगल एक्सपर्ट्स को कंसल्ट किया इस पे. We request that before applying for jobs, please verify the quality of firms or companies. Majority of such job offers are fake. Before accepting jobs, verify the credentials of the company. As far as their genuineness is related, the consulates have no mechanisms to verify such offers of job, as the laws of confidentiality are strong here. लेकिन अगर laws strong भी हैं, तो हम कुछ ऐसी आपको आज ऐसी बातें बताएंगे, ऐसे गुर बताएंगे, ऐसे टिप्स देंगे कि जिनकी लाइट में आप फेक जॉब ऑफर को जेन्युइन जॉब ऑफर से निहायत आसानी से डिस्टिंग्विश कर देंगे. और वो हैं, पहली बात ये है, जो सबसे पहली बात है, प्लीज आस्क द फर्म और एम्प्लॉयर टू प्रोवाइड LMIA. What is LMIA? It is a document called Labor Market Impact Assessment that an employer in Canada needs to get before hiring a foreign worker. It means that an employer who offers a job to a foreigner has to prove it to the Canadian Labour Ministry that Canadian nationals or PR holders either don't have such skills required by the job or they don't want to do it. तो LMIA का जरूर पूछें और उनसे कहें जी उसकी कॉपी भेजें आप, अगर हमें ऑफर कर रहे हैं तो. दूसरी बात, चूंकि ये इमिग्रेशन के इश्यूज में बहुत ज्यादा फ्रॉड होता है, तो दूसरी बात ये है कि there is a need to exclude the possibility of fake LMIA prepared by some unscrupulous elements. To confirm the genuineness of LMIA, you may write to Canadian Ministry of Labour directly. अगर आपको LMIA आ भी गई है तो आप उसको भेज दें मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के वेबसाइट पे जाकर उनका एड्रेस देखकर कि भाई मुझे ये आई है, ये जेन्युइन है या फेक है. फौरी तौर पे वो आपको बता देंगे कि ये हमने नहीं, अगर कोई अनस्क्रूपुलस एलिमेंट ने LMIA फेक दी भी है तो वो उसको एड्रेस कर देंगे. थर्ड, ये बड़ी कॉमन सेंस की बात है. The Canadian employers are usually financially stable enough and don't ask for money from selected candidates for minor things. If some employer has given you a job offer but is interested in your $2,000 or $5,000 or $10,000 for issuance of minor documents, then it is most probably a fake offer. Most of fake offers are sent by those who ask for money for various minor procedures. If somebody is asking for money after sending job offer, our advice is not to send the money. Shakil Alam Saab ne pucha hai, how can we narrow the gap between overseas Pakistanis and the Consulate General of Pakistan? इसका जवाब जो है वो बहुत सादा सा है. For example, our consulates, particularly Consulate General Pakistan Toronto, चूंकि मैं उसके बारे में ज्यादा कह सकता हूँ, मैं ज्यादा जो पर्सनल बुनियाद पे कह सकता हूँ, लेकिन हमारे सारे consulates, they are open for all consular services, and we don't consider there is any gap between the Consulates General and the Pakistani community residing in Canada. One of the mechanisms for incorporating the community's feedback and enhance the responsiveness of the consulates is to hold these monthly meetings. Please attend these monthly meetings. हमें बड़ी खुशी हुई कि शकील आलम साहब ने हमें ज्वाइन किया.
In addition to monthly meetings, we continue to hold webinars on textile, food sector, e-commerce, leather products, and tourism. Please participate in our webinars and events. Last year, we held a 2-day international conference on Iqbal and multiple webinars on Kashmir on the occasion of 5th August and 26th February. We shall request you to participate in these events. This year again, we shall request you to join our events on the occasion of 5th August and Independence Day event on 14th August. Your presence in all such events will bring the community and consulate closer. Mohammed Ahmed Saab ne pucha hai कि is this possible that due to this COVID and traveling situation, online transfer by purchase and sale using property in DHA and other parts of Pakistan, it's helped to invest more in Pakistan. Basically, इनका सवाल ये है कि जो प्रॉपर्टी की सेल और परचेज से रिलेटेड कॉन्सुलेट्स अपनी सर्विसेज देते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी रिलेटेड, क्या वो ऑनलाइन हो सकती हैं? यही सवाल है. वो he is nodding in affirmation, very nice person. लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे मोहम्मद अहमद साहब को ये बताना पड़ता है कि we can assist in verification of power of attorney for the purpose of sale and purchase, and we take pride that in spite of these COVID related restrictions, our missions in Canada remained open, and they were providing this service because when people were stuck in house due to COVID emergency, most of them were thinking of purchasing or selling some property in Pakistan. So हमारी उसकी अपॉइंटमेंट बहुत बढ़ गई थी इस पीरियड में. बट लीगल पाकिस्तान का स्ट्रक्चर इस तरह है, और जो रिकॉर्ड है इसमें चूंकि बड़ी खतीर रकम की प्रॉपर्टीज होती हैं कि पर्सनल प्रेजेंस इज मैंडेटरी, एंड क्योंकि उसमें बड़ी हाई अमाउंट की हैवी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व होती हैं और फ्रॉड का खतरा बिल्कुल 100% एक्सक्लूड करने के लिए हम वो रिक्वेस्ट करते हैं. सो embassies and consulates at this stage don't have this mandate of online processing of power of attorney relating to transfer, purchase, sale of property in DHA or any other part of Pakistan. But usually we go an extra mile to adjust requirements of our compatriots. अगर कोई बीमार हैं, कोई और मसाइल हैं, कोई बूढ़े हैं, तो हम उनको उनकी बड़ी मदद करते हैं कि वो कॉन्सुलेट नहीं आ सकते, या कोई और मसला है तो हम उनको बहुत एडजस्ट करते हैं. लेकिन ये लीगल रिक्वायरमेंट जो है, इतनी करोड़ों बाजुकात अरबों की प्रॉपर्टी होती है और वो ऑनलाइन उसको ट्रांसफर करने का वो रिस्क अभी हुकूमत ने हमें इजाजत नहीं दी लेने का. दूसरा क्वेश्चन जो है वो है कि how can we add products to import from Pakistan like handicrafts and packaging material? In order to assist in exporting the products from Pakistan to Canada, the Consulate General can connect on your behalf any prospective importer in Canada with the exporters and suppliers of the products manufactured in Pakistan, such as handicraft or packaging material. It is important to have detailed specifications and attributes of the products that is being exported from Pakistan to Canada. ये हमें बहुत दफा मसला होता है कि हमारे पास insufficient information होती है exporter की product की detail की. Based on the product detail, the Consulate General can also provide information about any import regulation or tariff on the products charged by the Canada Border Security Agency. ये इससे अगला सवाल फरहान साहब ने सिर्फ हमें ये कहा है कि प्लीज कम्युनिकेट विद अस थ्रू व्हाट्सएप नंबर. इस हमारे पास में चूंकि बहुत ज्यादा कॉल्स आती हैं तो अगेन हम ये कहेंगे कि और टाइमिंग भी आसान होती है. अगर आप किसी भी टाइम जोन में हैं तो आप हमारे साथ ईमेल के जरिए कम्युनिकेट करें. और बाकी कॉन्सुल जनरल साहबान को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जब उनको फ्लोर मिले तो वो अपने ईमेल्स जो हैं, एड्रेसेस जो हैं वो शेयर कर दें. हमारा ईमेल एड्रेस जो है pakconsulate@pakmission.ca. साहबजादा गुलाम मुज्तबा साहब, प्रेसिडेंट
TL, Cubic, इन्होंने मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे हैं। तो कुछ क्वेश्चंस के जवाबात जो हैं इश्तियाक अहमद दाखिल साहब देंगे, लेकिन जो ट्रेड से रिलेटेड सवाल है वो मैंने अलहदा करके उसको मैं एड्रेस कर रहा हूँ। इनका क्वेश्चन ये है कि to enhance the volume of trade and investment between Pakistan and Canada, is there any improvement? First part of the question. Second, is the mission making any effort to do even more? Now, this is a question, you will bear with me. इस पे मैं थोड़ा सा डिटेल में जाना चाहूंगा इसके रिस्पांस में, चूंकि हमारे कम्युनिटी को आमतौर पे वो उतना अंदाजा नहीं होता कि फिगर्स का भी, फैक्ट्स फिगर्स का भी, और हम क्या करते हैं बिजनेस प्रमोट करने के लिए। According to State Bank of Pakistan data, Pakistan's exports to Canada during the financial year 2021 increased 15.4% as compared to the similar period of last year. Now, अब आप इसको appreciate करेंगे कि 15.4% is a huge increase in a COVID year. बहुत ज्यादा मुल्कों की जो ट्रेड है वो कंट्रैक्ट हुई है कोविड की वजह से, लेकिन पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जो कनाडा में हैं वो 15.4% इंक्रीज हुई हैं डिस्पाइट कोविड ईयर। Total exports during financial year 2019-20 stood at $270 million, which increased to $312 million in financial year 2021. Pakistan Mission Canada is reaching out to local businesses and trade bodies. हाँ, ये जो दूसरा सवाल का दूसरा हिस्सा था कि फिर हम और क्या कर रहे हैं, ये तो ट्रेड का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा, उसका जवाब मिल गया। तो जो हम कर रहे हैं वो ये है कि we are reaching out to local businesses and trade bodies for introducing Pakistan's products in different sectors. During such interactions, profiles and contact details of exporters from Pakistan are also shared with the buyers along with the product range offered. In addition, meetings between GTA, regional boards of trade and city chambers in Pakistan are also being organized for increasing connectivity of Pakistani businesses with the business community in Canada. The Consulate General of Pakistan, Toronto, has also arranged a series of webinars on different export sectors of Pakistan, such as fruits and vegetables, other food items, textile, leather and footwear. Recently, another important webinar was arranged on tapping North American market through e-commerce, with focus on selling through Amazon. During these webinars, the speakers shared their experience and knowledge regarding different aspects of the product segments, market demand and trends, regulatory requirements, market challenges. In the e-commerce webinar, the panel of speakers included successful sellers on Amazon, representative from the State Bank of Pakistan, Pakistan Post, and experts from Trade Development Authority of Pakistan. The recordings of all these webinars have been placed on the Facebook page of the Consulate General and other missions, which can be watched by interested exporters and importers. Further, the consulates are also developing and updating database of leading buyers and importers in Canada in different product sectors, which are shared with the relevant exporters from Pakistan and for facilitating their contacts with buyers in Canada. Moreover, important and relevant information about Pakistan trade, investment, and related events is widely disseminated among the community members who are in contact with the High Commission and the consulates through email, Facebook, and Twitter. In addition, information about the Canadian import regulation and restrictions and the contacts of buyers, importers in different product sectors are being regularly shared with interested businessmen in Pakistan and Canada. The commercial section in Consulate General of Pakistan, Toronto, also acts as a bridge for Pakistani business community in Canada and connects them to leading Pakistani exporters in different product segments. अब आपने देखा होगा इसमें मैंने काफी सारे क्लेम्स किए हैं। आप एक तजर्बे के तौर पर हमें ईमेल भेजें कि हम इसका जवाब किस तरह देते हैं, कितनी देर में देते हैं, टाइम नोटिस करें हमारी रिस्पॉन्सिवनेस का कि कितना टाइम लगाते हैं और हमारे सवाल की जो जवाब की है वो क्वालिटी क्या होती है। अब्दुल वहीद साहब ने पूछा है, I left Canada due to health issue after a car accident in London, Ontario. I need your help in returning back to Canada and need consulate's help. I am out of Canada due to unknown reason from CBSA. My application for return back already is submitted to Canadian Immigration. I received papers from CBSA that I need PR visa for return back. My request is consulate. My request needs special attention from Pakistan consulate in regard of my application with Canadian Immigration.
वहीद साहब, आपके जो कंसर्न है हम उसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं और हम उसकी सीरियसनेस को भी समझते हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल लॉ है हम उसके सारे उसको फॉलो करते हैं और उसमें बंधे हुए हैं सारे लोग. Issuance of PR is the prerogative of Government of Canada. Consulates general, embassies of Pakistan would not be able to assist anybody in expediting their PR application because it is Canadian government's decision. कई दफा ये होता है कि अगर हम उसको इंटरफेयर करें तो वो कैंडिडेट के लिए नुकसानदेह भी होता है. और दूसरा ये कि बाज औकात वो कहते हैं कि हमारी कॉन्फिडेंशियलिटी है, हमारे सिटीजन के राउट पे, सिटीजनशिप के राउट पे ये आदमी मौजूद है, आप क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं, क्यों इंफॉर्मेशन ले रहे हैं. तो उसमें हम हार्डली कुछ कर सकते हैं. बहुत जब कोई चीज हो तो हम ये कर सकते हैं कि आप हमें अपना रेफरेंस नंबर भेज दें तो हम स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन का पता कर सकते हैं कि पाकिस्तानी सिटीजन है, उसने अपनी जिंदगी प्लान करनी है पाकिस्तान में रहते हुए, कि आप उसकी जो एप्लीकेशन है उसको किस तरह हैंडल कर रहे हैं, कि कितना टाइम लगेगा. तो उसके लिए आप हमें स्टेटस बता दें. बेशक हमें आप अपना वो डिसीजन तो बिल्कुल हमसे शेयर नहीं करते. ये जो मेरे पास सवालात थे वो उनमें से आखिरी सवाल था, और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कौंसल जनरल वैंकूवर मिस्टर जांबाज खान साहब से कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें. ओवर टू कौंसल जनरल जांबाज खान साहब. थैंक यू वेरी मच सर, वेरी काइंड ऑफ यू सर. काउंसलर जनरल वैंकूवर की तरफ से मेरा आप सबको सलाम. आज जो पहला क्वेश्चन हमारे पास आया है वो मिस गुलमीना खान गौरी का है. उसमें वो अर्ज करती हैं कि आई स्पॉन्सर वाइफ ऑफ राहत रशीद राना, माय स्पाउस प्रिंसिपल एप्लीकेंट, अप्लाइड फॉर स्पाउसल एप्लीकेशन ऑन 8th August 2019. Date of file received to IRCC. It has been 2 years and I am waiting impatiently for my husband's visa. The question is, how much time more do we need to wait to go back to Canada, and so that I can start my newly married life in Canada with my spouse? Like Abdul Hamid साहब had earlier पहले जो जवाब दिया है वहीद साहब के सवाल का, इसका भी कुछ वही सवाल है, जवाब है कि ये काउंसलेट जनरल या हाई कमीशन के परव्यू या उनके दायरे जिम्मेदारी में नहीं आता. ये एक लोकल लॉ है, एक लोकल कानून है, मतलब कि ये कनाडा का कानून है जिसमें काउंसलेट्स या हाई कमीशन डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो सकती. ये इंटरनल मैटर है कैनेडियन गवर्नमेंट का, व्हिच इज बीइंग डेल्ट बाय द इमिग्रेशन एंड सिटीजनशिप कनाडा डिपार्टमेंट से हो रहा है. मेरी आपको ये तजवीज होगी कि आप बराए मेहरबानी अपने जो कैनेडियन इमिग्रेशन लॉयर या फर्म है जो आपका इमिग्रेशन प्रोसेस कर रही हैं, आप उनको अप्रोच करें कि वो आपके बिहाफ पे इमिग्रेशन अथॉरिटीज को इंगेज करें और आपके रेलेवेंट वीजास को इशू करवाएं. मेरे पास दूसरा सवाल है मिस्टर जुनेद इकबाल साहब का. उन्होंने सवाल ये पूछा कि इज देयर एनी अपडेट ऑन वोटिंग राइट्स ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानी. अभी तक कोई हमारे पास इसका लेटेस्ट सिचुएशन नहीं आई सिंस लास्ट जो हमारी ये ई कचहरी हुई थी. वी आर अवेटिंग इंस्ट्रक्शन एज एंड व्हेन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान विल डिसाइड कि जो वोटिंग है फॉर ओवरसीज पाकिस्तानी को रेगुलेट कैसे करना है, वो रूल्स रेगुलेशन जैसे ही हमारे पास आएंगे वो हम आपसे शेयर करेंगे. इसके अलावा दो चीजें मैं आपसे ये भी शेयर करना चाहता हूँ. एक, शकील साहब ने क्वेश्चन रेज किया था कनेक्टिविटी विद द काउंसलेट्स और द हाई कमीशन. मेरा ये एक्सपीरियंस अभी तक जो कनाडा में रहा है कि level of connectivity and transparency by the High Commission and the Consulate Generals of Pakistan in Montreal, in Toronto, in Vancouver, and our High Commission in Ottawa is exceptionally good. आप किसी वक्त ईमेल कर सकते हैं, किसी वक्त फोन कर सकते हैं. अब मैं अपना एग्जांपल दे सकता हूं कि मेरा अपना पर्सनल ईमेल भी हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है. आप मुझे डायरेक्टली भी ईमेल कर सकते हैं.
हमारे जो सोशल मीडिया की साइट्स हैं, लाइक फेसबुक हो गया, लाइक इंस्टाग्राम हो गया, लाइक ट्विटर अकाउंट्स हो गए, आप उस पे भी हमें जो उनके मैसेंजर्स हैं उनके थ्रू भी हमें आप मैसेज कर सकते हैं एंड वी रिस्पॉन्ड. As far as Consulate General of Pakistan in Vancouver is concerned, हमारा handle for social media for Instagram, Facebook and Twitter is Park in Vancouver. I repeat, Park in Vancouver. जैसे कि हमारे काउंसिल जनरल साहब अब्दुल हमीद साहब ने एक डिजायर शो की थी कि हम अपना ईमेल भी आप लोगों से शेयर करें, तो हमारा ईमेल एड्रेस काउंसिलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान इन वैंकूवर मैंने चैट के ऊपर भी टाइप कर दिया है, बट जो हमारा ईमेल एड्रेस है वो है parepvancouver1, which is PAREPVANCOUVER1 at mofa.gov.pk. ये हमारा ईमेल एड्रेस है. आप हमें डायरेक्टली भी कर सकती है, हमारे वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, और ये इट कैन बी यूज्ड टू कांटेक्ट अस. एंड लाइक हमारे काउंसिल जनरल साहब ने कहा कि आप हमें ईमेल करें, आप हमारा रिस्पांस टाइम क्लॉक करें एंड आप हमारा क्वालिटी ऑफ रिस्पांस को भी गेज करें और वो हमें फीडबैक दें उस पर, इफ वी कैन फर्दर इम्प्रूव इट. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लीज अंडरस्टैंड वी आर हियर फॉर यू. कोविड का जमाना आया हुआ है, अपना प्लीज लुक आफ्टर योरसेल्व्स. अकॉर्डिंग टू कैनेडियन अथॉरिटीज काफी हद तक इन्होंने कंट्रोल कर लिया हुआ है. बराए मेहरबानी help them further control it. The more control it becomes, the easier it would be for us to interact with you even physically. I take this opportunity to give my regards to all of you once again, and I hand the floor back to our Consul Abdul Hamid Saab to carry on the proceedings further. Thank you very much, sir. Over to you. And thank you very much. Now I shall invite Consul General Montreal, Mr. Ishtiaq Ahmed Aqib, to express his views. Thank you, sir. Assalamu alaikum to all the participants. Before I proceed to the questions regarding the email of this mission, it is parepmontreal1@mofa.gov.pk. PAREMONTREAL1@mofa.gov.pk. इसके अलावा हम लोगों ने एक व्हाट्सएप नंबर भी सर्कुलेट किया हुआ है और इनफैक्ट उस पर व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है पाकिस्तानी कम्युनिटी का, which we are using extensively to share information with the Pakistani community, particularly based within the Consulate District of Consulate General of Pakistan, Montreal. और वो व्हाट्सएप नंबर है 514-512-2297. ये नंबर याद रखने का आसान तरीका ये है कि हमारा जो टेलीफोन नंबर है लैंडलाइन, दैट इज 845-2297, और ये व्हाट्सएप नंबर जो है ये 512-2297. इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें एडमिन्स, किसी भी एडमिन को अपना मैसेज वगैरह भेज सकते हैं. उस पर अपना नंबर अपना किसी मेंबर के साथ शेयर कर लें कि वो हमें भेज दे. हम सब लोगों को उसमें ऐड करते जा रहे हैं जितने नंबर हमारे पास आ रहे हैं. एक चीज़ कौंसल जनरल टोरंटो ने मेंशन की थी. देयर वाज अ क्वेश्चन फ्रॉम जेंटलमैन मिस्टर मोहम्मद अहमद आई सपोज रिगार्डिंग द पावर ऑफ अटॉर्नी, और कौंसल जनरल साहब ने कहा था कि हम मैक्सिमम हद तक अकोमोडेट करते हैं. इस सिलसिले में मैं एक आप लोगों को मिसाल देना चाहूँगा विच एक्चुअली हैपेंड एट दिस मिशन फ्यू वीक्स अगो. ऐसा ही केस था जिसमें जो एग्जीक्यूटेंट हैं उनकी एज खासी ज़्यादा थी, एंड द एग्जीक्यूटेंट वाज रिस्ट्रिक्टेड टू सम ओल्ड होम. यहाँ से वो यहाँ कॉन्सुलेट में नहीं आ सकते थे, एंड दे वांटेड दिस डॉक्यूमेंट टू बी एग्जीक्यूटेड. तो जब हमें अप्रोच किया गया और सूरत हाल बताई गई कि इस तरह होगा, सो आई रिक्वेस्टेड माय कोलीग्स कि आप लोग उधर चले जाएं वहाँ पर ओल्ड होम, और वहाँ उनसे ये डॉक्यूमेंट अपने सामने एग्जीक्यूट करवा के ले आएँ. एंड दिस इज हाउ वी डिड दैट डॉक्यूमेंट.
So whatever is permissible within the rules and regulations of the government of Pakistan, उसमें maximum accommodation की जा रही है. Whatever is beyond that, of course, हम खुद उसमें we can't go beyond that. Now, this question, वो Consul General Toronto ने जो एक question शुरू किया था from Sahibzada Ghulam Mujtaba, he had a second question as well, and the second question reads, at the level of the embassy and consulate, is there any plan to improve the soft image of Pakistan and Canada? That is, efforts to meet the Canadian media and the government, etc. Any suggestions for Pakistan community leaders to play their role to improve image of Pakistan? इसमें ऐसे है कि इसके लिए किसी प्लान वगैरह की जरूरत नहीं होती. This is like an ongoing activity, and the Pakistani embassies, Pakistani missions abroad, we continue meeting the media, the business community, the government representatives, the parliamentarians, anybody who is who in the host country, as well as the common people. Or whenever there is sort of a normal like state of affairs, ये अभी तो पेंडेमिक सिचुएशन की वजह से रिस्ट्रिक्शन है काफ़ी सारी, तो इस वजह से किसी तरह के इवेंट्स वगैरह नहीं हो सकते. वरना रूटीन में कुछ गैदरिंग्स, कुछ सेरेमनीज, कुछ इवेंट्स वगैरह अरेंज किए जाते हैं. उसमें कल्चरल हो सकते हैं, उसमें पाकिस्तानी क्यूजीन रिलेटेड हो सकते हैं, टूरिस्ट रिलेटेड हो सकते हैं, कॉन्फ्रेंसेज, वेबिनार, सेमिनार्स, फूड टेस्टिंग, मैंगो डिस्ट्रीब्यूशन. आई मीन देयर कुड बी मैनी वेन्यूज. और ऑफ कोर्स पाकिस्तानी कल्चर इज सो रिच, आवर सोशल वैल्यूज आर सो स्ट्रांग, वो सारी यहाँ पे वी कैन मेक द पीपल अवेयर ऑफ दोज थिंग्स. एक चीज विच आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज लाइक माई पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, while promoting the image of Pakistan in any foreign country, we should not gloss over our weaknesses. आप उनको acknowledge करें कि हाँ ये एक चीज है, this is how we are trying to address it. The people are aware of these shortcomings in our society. ये हमारे issues वाकई हैं, हम इसको address करने की कोशिश कर रहे हैं. There is awareness. और देखें इस पे ये legislation हो गई है या ऐसा कोई event हुआ था तो so many people they came out on the roads to protest. Particularly वो issues जिस पे हमारा image बाहर दूसरे मुल्कों में undermine हो रहा है, damage हो रहा है, उन issues पे it is very important to create awareness. For example, जिस तरह women rights है, तो अगर आप लोगों को बताएं कि जनाब हमारी तो पहली women governor जो है 1954 में बन गई थी. We had lady ambassador in 1950s, and for example, we have women pilots, we have women generals, we have this lady Smina Beg who has scaled all the 8,000 plus peaks in the world, and so on and so on. So जहाँ issues हैं, we acknowledge and we also present the factual situation, और जो हमारे positive points हैं, we need to build upon them. इससे थोड़ा सा people do realize कि हाँ society जो है it is on the positive trajectory. और as regard this वो जो कह रहे थे कि role of community leaders, तो of course the community leaders they have important role. आप लोग माशाल्लाह से 20 साल 30 साल और even more इतने अरसे से यहाँ पे settled हैं. You know the local people, you are into the local political system, आप influential लोग हैं. ये जो activities मैंने बात की है इस पे it is not necessary कि आप जो है वो कोई 10, 15, 20 हज़ार डॉलर इकट्ठे करके एक बड़ा इवेंट ही करें. ऐसे भी हो सकता है कि लाइक घर में अगर मैं फॉर एग्जांपल गेस्ट को बुलाता हूं एंड इफ आई सर्व देम पाकिस्तानी फूड एंड दीज आर फॉरेनर्स, सो दैट इज आल्सो सॉर्ट ऑफ आई एम प्रमोटिंग पाकिस्तानी कल्चर. उनको छोटे छोटे गिफ्ट दिए जा सकते हैं. यहाँ पे पाकिस्तानी स्टोर्स वगैरह हैं, उनको पाकिस्तानी हैंडीक्राफ्ट्स प्रेजेंट की जा सकती हैं एंड थिंग्स लाइक दैट. आई मीन स्काई इज द लिमिट एज रिगार्ड्स प्रमोशन ऑफ द इमेज ऑफ पाकिस्तान इज कंसर्न. और आजकल सोशल मीडिया की वजह से ये तो बहुत आसान हो गया है. काफ़ी सारी चीज़ें आपको सोशल मीडिया पे अवेलेबल हैं
और नहीं तो कम से कम ये किया जा सकता है कि बैठ के आप वो पाकिस्तान टूरिज्म के जो साइट्स पर हैं वो सोशल मीडिया पे वन कैन पोस्ट or repost or retweet those things. So many things to do. अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास वो महमूद उल हक साहब का है. He is asking, is this year Pakistan Consulate Office Montreal celebrating 14th August event or not? जी बिल्कुल, we are planning to celebrate the independence anniversary और inshallah very soon we are going to circulate the invitation to all the Pakistani community. However, you would know कि हमारे पास यहाँ इस कॉन्सुलेट जनरल में स्पेस की बड़ी इशू है. हमारे पास कोई हॉल नहीं है और फिर कोविड की वजह से वो ये है कि जितनी स्पेस अवेलेबल है उसमें भी we cannot accommodate like 100% capacity. So we have to abide by the local SOPs for COVID. So one of the ideas which we are thinking about including in our that invitation to the Pakistani community is first come first serve. So we'll see कि हमारे पास maximum capacity कितनी हो सकती है और उस पे we'll invite the guests. Next question is from Mr. Shahid Chaudhary. वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान कॉन्सुलेट मॉन्ट्रियल अच्छा काम कर रही है. थैंक यू वेरी मच शाहिद साहब. जो क्वेश्चन है उनका वो कहते हैं वी आर ग्रोइंग कम्युनिटी इन ग्रेटर मॉन्ट्रियल बट नाइकोप इज नॉट प्रोसेस्ड इन कॉन्सुलेट. इट वुड बी great to have this facility. The High Commission should take up this matter with NADRA on urgent basis so all my fellow Pakistanis can get the facility. इसमें शायद सब ऐसे है कि since the launch of this online facility by NADRA, they withdrew this paper application facility. तो अब पाकिस्तान मिशंस अब्रॉड, इसका मतलब है कि एम्बेसीज या कॉन्सुलेट्स वो एप्लीकेशंस शनाख्ती कार्ड की नहीं ले सकते. And like I said in the previous meeting, of course, all the Pakistan missions abroad, they are fully conscious of the difficulty being faced by Pakistani community. काफ़ी सारी जगहों पे लोगों को कंप्यूटर की they are not comfortable applying online. उसमें टेक्निकलिटीज होती हैं. बाद औक़ात even we people we face difficulty while applying online, for example for visa for some country के जी उसमें कोई particular requirement है फाइल की इस फॉर्मेट में हो, इतना उसका साइज हो, इतने डीपी हो. I mean these things वो जो कॉमन नॉलेज की नहीं है उस वजह से इश्यूज आ जाती हैं. So this is something which is well known among all the Pakistani missions. अब उसमें ये है कि नादरा के साथ ये मामला रेज किया गया और कॉन्सुलेट जनरल मॉन्ट्रियल ने नादरा को लिखा है कि आप हमें एक उनके पास इक्विपमेंट है लाइक जिस तरह MRP का हम डाटा लेते हैं कि एप्लीकेंट आता है उससे आप बायोमेट्रिक्स ले लेते हैं, डाटा लेके एप्लीकेशन जो फॉरवर्ड कर दें इस्लामाबाद को, उस तरह की फैसिलिटी दे दें. अपना इक्विपमेंट हमें दें एंड वी हैव द एक्सपर्टीज इन कंप्यूटर. हमारे लोग बड़े अरसे से कंप्यूटर्स पे काम कर रहे हैं, so they can do that. एप्लीकेंट आए, आप उसको बैठा के सामने उसका डाटा कैप्चर कर लें, बायोमेट्रिक्स लें एंड ट्रांसमिट इट टू नादरा एंड देन the NICOP or the NIC can be processed like the MRP. So let's hope NADRA accedes to our request and we get the required equipment. But of course this is very important. अगला क्वेश्चन जो है ये हमें ईमेल पे आया था. The question is, I'm going through my immigration application for express entry and will need a police character certificate. I was wondering if it is possible to have it made through the consulate. Can you guide me if this can be done here in Montreal, Canada, or do I have to get it done via someone in Pakistan? अब इसमें एक चीज जो है वो क्लियर कर लें कि पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स जो हैं वो दे आर इशूड बाय द कंसर्न district police offices in Pakistan. They are not issued by any Pakistan mission abroad. So उसका ये तरीका है कि if somebody is on a visit to Pakistan, he or she can get it from there. अप्लाई करें concerned office को और उनसे सर्टिफिकेट बनवा लें.
अगर आप पाकिस्तान में नहीं हैं तो ऐसे हो सकता है कि एक अथॉरिटी लेटर किसी को इशू कर दें पाकिस्तान में, अथॉरिटी लेटर अपने नज़दीकी पाकिस्तानी मिशन में ले जाएं, उसको अटेस्ट करवा लें, एंड देन सेंड इट टू पाकिस्तान, और वहाँ पे वो आपका पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा के वापस भेज दें। लेकिन वापस भेजने से पहले इट इज़ एडवाइजेबल कि उसको फॉरेन ऑफिस की तस्दीक करवा लें। और फॉरेन ऑफिस की तस्दीक फॉरेन ऑफिस इस्लामाबाद से हो सकती है, या इसके कैंप ऑफिस हैं प्रोविंशियल कैपिटल्स में, लाहौर, कराची, कोयटा एंड पेशावर, वहाँ से करवा लें। Once you have it, then you can submit it to the Canadian authorities. लेकिन इन केस अगर आपके पास ये दोनों ऑप्शंस ना हो कि आप ना खुद पाकिस्तान जाने का इरादा रखते हैं, ना पाकिस्तान में, और ना किसी और को अथॉरिटी लेटर देना चाहते हैं, तो ऑफकोर्स आप मिशन को भी ले सकते हैं, और हम वो आपसे वो एप्लीकेशन, वो मिशन को एप्लीकेशन देंगे आप, लेकिन लिखेंगे कंसर्न डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर को, वो हम उनको ट्रांसमिट कर देते हैं, एंड whenever reply is received या आपका जब सर्टिफिकेट आता है तो वो एप्लीकेंट को दे देते हैं। लेकिन ये वाला प्रोसीजर जो है इट टेक्स यूजुअली क्वाइट लॉन्ग। तो क्योंकि जिस तरह अभी आपने कहा कि एक्सप्रेस एंट्री है, सो आई गेट द इम्प्रेशन कि आपका जो टाइम है दैट इज टाइम फ्रेम आपका जो है वो गालबन शॉर्ट है। इट इज़ एडवाइजेबल कि आप वो पहली दो ऑप्शन में से एक कर लें। अगर पाकिस्तान में हो या अभी नियर फ्यूचर में जाना चाहते हो तो बजाते खुद करवा लें, वरना किसी को वहाँ अथॉरिटी लेटर भिजवा दें। अथॉरिटी लेटर भेजने से पहले कंसर्न पाकिस्तानी मिशन से टेस्ट करवा लें, और अगर पाकिस्तान में जब पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू हो गया है तो वो उसको वहाँ से फॉरेन ऑफिस से तस्दीक करवाएं। और ये है कि ये जो आप यहाँ से अथॉरिटी लेटर तस्दीक करवाएंगे या पाकिस्तान में पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, वो उसकी जो भी प्रेस्क्राइब्ड फी है वो आपको देनी पड़ेगी। Even in case of your application being sent to district police officer, वो जो आप हमें अगर देते हैं तो उस सूरत में भी a prescribed fee is payable. The next question: I am flying to Pakistan in a week's time through Qatar Airways, and the airline says it abides by the requirements of the government of destination country in regard to the COVID-19 PCR test. Could you kindly confirm if Pakistan requires a pre-departure COVID-19 test for children under 12 years of age? कि जी मैंने कतर के थ्रू ट्रैवल करना है, बच्चे हैं छोटे 12 साल से कम उम्र के, और उनके लिए कोविड-19 का टेस्ट करवाना है या नहीं करवाना। कतर एयरलाइन ये कह रही है कि हम तो होस्ट कंट्री जो है उसकी रिक्वायरमेंट्स को वी कंप्लाई बाय दोज रिक्वायरमेंट्स। तो अब इसमें मैं आपको बताता हूँ कि हमारी जो सिविल एविएशन अथॉरिटी है वो अपने ऑपरेशनल एसओपीज फॉर इंटरनेशनल इनबाउंड पैसेंजर फ्लाइट्स वो वक्तन फ़क्तन अपडेट करती रहती है, और तमाम एयरलाइंस के साथ डायरेक्टली शेयर करती है इस्लामाबाद में। उनकी जो लेटेस्ट कम्युनिकेशन है इस सिलसिले में, इट इज़ ऑफ 5 मई 2021 which is still in vogue, अभी जो चल रही है, और ये उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है caapakistan.com.pk। इसका अगर गूगल पे वैसे सर्च करें तो इसका नाम है ऑपरेशनल एसओपीज फॉर इंटरनेशनल इनबाउंड पैसेंजर फ्लाइट्स। अगर इतना लंबा नाम याद ना हो तो सिंपल ये किया जा सकता है कि CAA SOPs फॉर इनबाउंड पैसेंजर्स। इसका पैरा 5 जो है वो मैं आपको कोट करता हूँ। वो कहता है फॉलोइंग पैसेंजर शैल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम बोथ RT-PCR टेस्टिंग एंड फास्ट ट्रैक ऐप अपलोडिंग रिक्वायरमेंट। ये फास्ट ट्रैक ऐप जो है वो जिस तरह आप कनाडा ट्रैवल कर रहे हैं तो इनकी एक ऐप है जिसपे आप यहाँ आने से पहले अपने आप को रजिस्टर करते हैं, और यहाँ आके क्वारंटीन के दौरान उसमें अपलोड कर रहे होते हैं अपनी कंडीशन ऑफ वंस हेल्थ, वो जो अपलोड की जाती है। इस तरह फास्ट ट्रैक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की ऐप है जो पाकिस्तान ट्रैवल करने से पहले इट इज नेसेसरी कि आप उस पर अपने आप को रजिस्टर करें। सो इट सेज फॉलोइंग पैसेंजर शैल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम बोथ RT-PCR टेस्टिंग एंड फास्ट ट्रैक ऐप अपलोडिंग रिक्वायरमेंट। नंबर 1, चिल्ड्रन बिलो 12 ईयर्स, तो 12 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं वो उनको PCR टेस्ट नहीं चाहिए। Number 2, disabled passengers. Number 3, high-level international delegations.
नंबर 4 पाकिस्तानी डिपोर्टीज, नंबर 5 क्रू, ये जो जहाज का अमला स्टाफ। तो इसके मुताबिक ये चीज़ें 12 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए PCR टेस्टिंग रिक्वायरमेंट नहीं है। और ये जो मैंने आपको कहा, ये आप नेट से देख के जो भी कंसर्न एयरलाइन है उनके रिजर्वेशन काउंटर को, कंसर्न पर्सन को डायरेक्टली दिखा सकते हैं, बिकॉज दिस इज ऑन CAA सिविल एविएशन अथॉरिटीज वेबसाइट, सो दिस इज लाइक अ कंफर्म डॉक्यूमेंट। लेकिन एक चीज इसमें ध्यान में रखें कि ये डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है यहाँ से पाकिस्तान के, मॉन्ट्रियल से, ये एक और कंट्री के थ्रू जा रही है बीच में से। सो बाज़ औक़ात वो एयरलाइंस के लिए ये डिफ्रेंशिएट करना पैसेंजर्स में वो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये पैसेंजर फलां जगह से आ रहा है, फलां जगह जा रहा है, ये ट्रांजिट करेगा, ये ट्रांजिट नहीं करेगा। सो दे सॉर्ट ऑफ गो लिटिल बियॉन्ड दीज SOPs। सो उस सूरत में वो रिक्वायर कर भी लेते हैं। And this I can tell all the participants of today's meeting from my personal experience. When I was traveling to Canada in December, उस वक्त यहाँ की requirements कुछ और थी, लेकिन I too traveled by the Qatar airline, और उन्होंने मुझे कहा कि जी आप ये टेस्ट within this time frame करवा के हमें भी दें और वहाँ अपलोड भी करें, और उस तरह की कुछ रिक्वायरमेंट थी। And of course I abided by that. So I mean, if they say they are abiding by the host destination countries SOPs, तो सिविल एविएशन अथॉरिटी की वेबसाइट से उनको वो SOPs दिखा दें। एंड इफ दे आर रिक्वायरिंग समथिंग बियॉन्ड दैट, तो उसकी जस्टिफिकेशन मैंने आपको बता दिया कि बाज़ औक़ात इस वजह से वो कर रहे होते हैं, लेकिन ये डेस्टिनेशन कंट्री की रिक्वायरमेंट ऑफ कोर्स नहीं है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, I need an appointment to apply for a family visa for my wife. She needs to travel in next 10 days. अच्छा, इस सिलसिले में ये है कि with the introduction of the Pakistan online visa system, the option of submitting handwritten applications is no more available. ये पहले आप आते थे, वो 3-4 सफ़े का एप्लीकेशन फॉर्म भर के हमें दे देते, साथ 3-4 डॉक्यूमेंट्स होते थे, फोटोग्राफ्स वगैरह, फी जमा होती थी, एंड द पाकिस्तान मिशन अब्रॉड वुड प्रोसेस दैट। अब वैसे नहीं हो रहा। अब आप घर में बैठ के इंटरनेट एक्सेस करें अपने फ़ोन से, लैपटॉप से, कंप्यूटर से, और वहाँ नादरा की वेबसाइट पे चले जाएं। उसकी वेबसाइट है visa.nadra.gov.pk, visa.nadra.gov.pk। उस पे जाके अपनी वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करवा दें। इस सिलसिले में एक जो चीज़ जो हम यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं और जो अननेसेसरीली प्रोसेस को लंबा कर देती है, वो ये है कि lot of applications which we are receiving here, they are not completely and properly filled in. अब ये एक चीज़ ध्यान में रखें कि ये एप्लीकेशन फॉर्म में जो कुछ लिखा होता है, all that is required until unless it is indicated otherwise. जब लिखा हो कि ऑप्शनल, तो फिर वो ऑप्शनल है, अदरवाइज एवरीथिंग इज इट नीड्स टू बी फिल्ड इन। हाँ, अलबत्ता ये हो सकता है कि कोई चीज़ आपको अप्लीकेबल नहीं है या उसका रिस्पांस निल है, तो उसको खाली बिल्कुल ना छोड़ें, वहाँ पे निल लिख दें या नॉट अप्लीकेबल लिख दें। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम द एप्लीकेंट, आई नो माई सर्कमस्टांसेस मच मोर देन एनीबॉडी एल्स। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम अप्लाइंग फॉर कैनेडियन वीज़ा, तो मैं एक असम्पशन पे नहीं छोड़ सकता कि वहाँ पे जो उनका वीज़ा ऑफिसर होगा वो ये वही बात एज्यूम कर रहा हो जो मुझे पता है। अगर मैंने कुछ एक कॉलम उसका ब्लैंक छोड़ दिया, तो इट इज़ जस्ट पॉसिबल कि द वीज़ा ऑफिसर में थिंक कि मैं गालबन कोई इन्फॉर्मेशन देना नहीं चाह रहा, इफ देयर इज समथिंग विच आई मे बी ट्राइंग नॉट टू डिस्क्लोज। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो एप्लीकेशन जो उसको मुकम्मल भरें, उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स साथ लगा दें। और ये तो एक एडल्ट का वीज़ा है, माई वाइफ उन्होंने लिखा है। सो इसमें रिक्वायरमेंट्स आप पूरी करेंगे, साथ पासपोर्ट की कॉपी वगैरह भेजेंगे, तो ये हो जाएगा। पाकिस्तानीज़ के बारे में पहले भी 1-2 दफ़ा मैंने रिक्वेस्ट की थी
कि अगर आपने कैनेडियन डॉक्यूमेंटेशन ले भी ली है तो इट इज स्टिल एडवाइजेबल कि आप अपने पाकिस्तानी डॉक्यूमेंटेशन जो उसको साथ साथ रिन्यू करवाते रहा करें। ये आपके ट्रैवल के लिए भी बहुत फैसिलिटेट करती है, और प्लस पाकिस्तान में आपकी अगर प्रॉपर्टी है, दूसरी चीज़ें हैं, बैंक अकाउंट्स हैं, वहाँ पे आपका लेन देन है, सो ऑल दैट इज फैसिलिटेटेड अलॉट अगर आपके पास वैलिड पाकिस्तानी डॉक्यूमेंटेशन मौजूद हो। सो सर, थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फ्रॉम दिस कॉन्सुलेट जनरल। थैंक यू वेरी मच। कॉन्सुलेट जनरल मॉन्ट्रियल इश्तियाक अहमद आकिल साहब हमें इनलाइटन कर रहे थे मुख्तलिफ कॉन्सुलर इश्यूज पे। मुझे तहे दिल से शुक्रिया अदा करना है अब्दुल वहीद साहब का, शकील आलम साहब का, महमूद उल हक साहब, मुनीर जाम साहब, हसन अली साहबजादा साहब और हमारे दोस्त मोहम्मद अहमद साहब। इन्होंने इतने पेशेंस का मुजाहरा किया और अपने सवालों का जब उनको जवाब मिल गया तो उसके बाद भी वो हमारे साथ रहे। हम इनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। मोहम्मद अहमद साहब ने चैट में भी एक क्वेश्चन किया है जो उनको जवाब जरूर देना चाहिए। उनका ख्याल है कि जो कैनेडियन गवर्नमेंट जो है वो WHO की अप्रूवल के बावजूद भी साइनोफार्म को इस वैक्सीन को अपनी लिस्ट में शामिल नहीं कर रही, तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? उसके लिए जी असल में ये इनकी अपनी जुरिस्डिक्शन है, ये इसमें इनको कनाडा हेल्थ जो है वो अपनी डिटर्मिनेशन करेगी साइनोफार्म के बारे में और फिर वो उसको शामिल करेगी। सिर्फ साइनोफार्म ही उन्होंने एक्सक्लूड नहीं की, और भी बहुत सारी इंटरनेशनली अवेलेबल वैक्सीन हैं जो उनकी लिस्ट में शामिल हैं। लेकिन मेरा परसेप्शन ये भी है कि ये लिस्ट फाइनल नहीं है और हम भी इंशाल्लाह इसको कैनेडियन गवर्नमेंट से उठाने का इरादा रखते हैं। और ये चूंकि हमारे काफी सारे शहरियों को पाकिस्तान में वो साइनोफार्म अवेलेबल थी और वो लगी। गो पाकिस्तान में एस्ट्राजेनेका और मॉडर्ना भी इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के लिए मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक अवेलेबल है, लेकिन ज्यादातर लोगों को साइनोफार्म और रशियन वैक्सीन से फायदा उठाया है पाकिस्तान में लोगों। तो ये बड़ा वैलिड कंसर्न है। मोहम्मद अहमद साहब, हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आपका कि आपने इसको रेज किया यहाँ पे। और कमिंग टू द कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग, आई मस्ट से दैट वी डिस्कस्ड इश्यूज रिलेटिंग टू कॉमर्स एंड ट्रेड, द लिस्ट ऑफ Canadian importers of medical and surgical instruments, the promotion of soft image of Pakistan, NICOP related facilities, the mode of verification of fake job offers to Pakistan national, the difficulties in online power of attorney and other issues. We also discussed that it was hard for consulates to assist in expediting PRs and visas due to strict laws of confidentiality of Canadian government. It was very useful discussion. We conclude the meeting here. Thank you very much everyone for joining us today. Thank you.